That's a good girl. You finished it? Did you like it? Maya, did you have fun eating it? Hello everyone, welcome back to my channel. In fact, welcome back to my kitchen. आज मैं माया का लंच बनाने जा रही हूँ and I thought it's a good opportunity for me to film it क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि डॉग के लिए वीगन मील हम कैसे बना सकते हैं. Do share the recipe. So here's what I'm going to be making today. अब मैं इसी रेसिपी के बहुत सारे वेरिएशन बनाती हूँ जहाँ पे सब्जियाँ बदलती रहती हैं. So really depends on season and what's available. मगर by and large रेसिपी सेम रहती है. Before I begin, let me reiterate, I am not a canine nutritionist. I am a human nutritionist, and these are the things that I have learned over my journey with my child and her vet's recommendation and how her body is responding to it. Like I have shared in other videos about dog food, and what I'm feeding is also that you're not, like in Ayurveda they say, you're not what you eat, you're what you digest. And in this case also it applies. It's not what you feed the dog, it's what your dog is able to digest. So you have to, after feeding food also, after giving different kinds of food to your dog which are not typical canine foods, you have to check कि वो कैसे respond कर रहे हैं. You have to check the consistency of poop. I know it sounds gross, but you have to do it and you should do it. You have to see how the puppy behaves after, if they have any hiccups or challenges or they're farting too much, you will be able to make out. And transitioning your puppy from very processed food to raw or to home cooked meals, कभी कभी हो सकता है कि बीच में उन्हें 1 या 2 हफ्ते थोड़ी सी teething issues आएं while you're changing their diet, but once they adapt well to it, they really love it. Maya really loves it, and I can see improvements in her health with this diet. So let's get started. तो इस रेसिपी के कुछ एक मेन इंग्रेडिएंट्स हैं. सबसे पहला है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. आप क्या चूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन आप कैसा मिक्स देना चाहते हैं. यू कैन चूज़ फ्रॉम मिलेट्स, जैसे ये बाजरा है. मुझे लगता है पर्सनली आई डेफिनेटली फील दैट मिलेट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अगेन अगर आपके पूछ को ये डाइजेस्ट होता है तो आप ज़रूर दे सकते हो. बाय द वे, जस्ट अ फैक्ट कि बहुत सारे जो किबल अवेलेबल है मार्केट में, उनमें भी फिलर को एज अ मिलेट को ही एज अ फिलर यूज़ किया जा सकता है. सो दिस इज़ गुड, बट डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज़ गुड इन दिस इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड प्रोटीन्स ऑल्सो. थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, ये लिटिल ऑन दी एक्सपेंसिव साइड आता है. इसका रेट मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है. अगर आप थोड़ा बजट फूड देखना चाहें तो आपके पास अगेन दूसरा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट का रहता है. ये दिस इज़ ब्रोकन राइस. ये आपको जो रेगुलर राइस है उससे हाफ कॉस्ट में मिल जाएंगे. एंड इट्स नॉट लाइक दे आर बैड राइस, दे हैव ऑलमोस्ट द सेम न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन. एंड द थर्ड ऑप्शन ऑफ कोर्स दैट यू हैव इज़ दलिया. हालांकि मैं बहुत ज़्यादा दलिया नहीं देती हूँ. जब भी मैं दलिया देती हूँ आइदर आई मिक्स मिलेट और राइस इन इट, क्योंकि आई एम नॉट श्योर ग्लूटेन कितना इसको टॉलरेट होता है. सेकेंड थिंग इज़ वेजिटेबल्स. आज मैं डाल रही हूँ pumpkin और frozen peas because that's what I have in my fridge. Maya really loves pumpkin, but there are days when I put gajar or French beans also. They work very well with her system. Beans पहले उसे इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन now she has started to digest it well and now she relishes it also. Next important thing, source of protein. मैं दाल्स प्रेफर करती हूँ. This is one option of dal that I put. This is organic moong split. ये एक अच्छा ऑप्शन है, but I think personally I prefer to give her mix. So ये 5 दाल मिक्स है. Again ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा. It's not super expensive. It's about 150 rupees per kg depending on where you're buying it. But yeah, organic भी लेंगे तब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ती, क्योंकि मिक्स दाल अगेन स्प्लिट है एक तो ये, और ऊपर से ये जो लेफ्ट ओवर्स हैं ये उसके साथ मिलती है. बट द एडवांटेज इज दैट कि एक ही दाल में आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है. सो नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोना डू इज कंबाइन अ दाल विद अ कार्बोहाइड्रेट मिक्स एंड वेजिटेबल्स एंड पुट इट ऑल इन प्रेशर कुकर. सो लेट्स डू इट. मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि जितनी दाल ली है सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी जाए. तो इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा दलिया और थोड़े से ब्रोकन राइस, सॉरी, एंड पुट अ लिटिल बिट ऑफ बाजरा इन इट. एंड नाउ आई एम गोना वॉश दिस एंड मिक्स वेजिटेबल्स. अब इस वेट मिक्स के अंदर मैं डालूंगी वेजीज. वेजिटेबल्स डालने के बाद इसमें हम डालेंगे क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है. सिर्फ मैं 1 चुटकी इसमें नमक डालूंगी
एंड आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ. हल्दी अगेन इज एंटीसेप्टिक, इसमें मिर्च वगैरह कुछ नहीं है, बट दिस इज गुड फॉर द गट ऑल्सो. आई एम गोना गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टर. एंड अब इसको मैं प्रेशर कुक करूँगी for say about 15 minutes or 3 to 4 whistles. So let's go. Now that this is done, you'll see closely. ये इतनी अच्छी तरह से गली होनी चाहिए कि जो आपका सब्जी है ना वो एकदम पल्पी हो. और अगर वो पल्पी नहीं है और खड़ी खड़ी सब्जी है देन दैट्स नॉट गुड फॉर द डॉग. अब इसमें डल रहा है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, एंड द सीक्रेट इंग्रेडिएंट टू दिस रेसिपी इज़ पीनट बटर. अब पीनट बटर जो है ये मैं इसमें वो वाला यूज़ करती हूँ जिसमें कि कोई भी प्रिजर्वेटिव ना हो. दिस इज़ 100% प्योर पीनट बटर. घर पे भी बना सकते हो आप. सो बेसिकली अगर आप खिचड़ी ऐसे ही सर्व करो विदाउट एनीथिंग, then it might be too dry for your dog to consume. So the magic ingredient to add here is peanut butter, and I prefer कि जब खिचड़ी गरम गरम हो तब मैं उसमें peanut butter डालूँ. ये 1 किलो मैंने ख़त्म कर दिया है. It doesn't need to be too fatty, but you still need to have like some amount of fat in the khichdi. Now I will just mix it well कि peanut butter इसमें melt होके अच्छे से mix हो जाए. And your pooch is really going to enjoy this. You can see now the peanut butter is nicely mixed, and इसको 2-3 घंटे अच्छे से ठंडा होने के बाद you can serve it, and you can even store it in the refrigerator for up to, I don't store it for more than 2 days, but you can store it for 3 to 4 days also. So this was my secret vegan recipe for my dog. I hope you like this video. Do give it a thumbs up. और अगर आप try करें and it turns out well, don't forget to tag me and don't forget to tell me that it turned out well and your dog loved it. I hope you all stay home, stay safe, and I shall see you next time.